इतना लेट में आने से होगा? मिस्टर सरोज कुमार, लेट हो गया सर, आज थोड़ा लेट हो गया। लेट मतलब बहुत लेट? बहुत लेट हो गया सर, गलती से। सर एक सवाल था सर, क्वेश्चन था। बोलिए ना। जैसे कि आप कल किए थे ना सर, जैसे बैकवर्ड मतलब कर रहे थे और फॉरवर्ड कर रहे थे, तो उसमें जंप करवा रहे थे बैकवर्ड, तो उसमें आप टूस कम्प्लीमेंट क्यों लिए सर? वंस कम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर के लिए 04 -04 करना पड़ेगा, तो -04 करने के लिए 04 का 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वंस कम्प्लीमेंट में नहीं होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव नहीं है, 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव नंबर। और सर प्रोग्राम कैसे लिखे सर, समझ में नहीं आ रहा है सर, वो देखे समझ हम। में तो हमारा ही नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा कैसे आएगा बोलो? प्रोग्राम सर नहीं बन पा रहा है सर लिखने में। हमको भी थोड़ी उतना पता है प्रोग्राम के बारे में। चलो देखते हैं कैसे बनता है। यस सर। चलो आज शुरू करते हैं। टुडे आई विल बी लीव द क्लास इज अर्ली। I have another webinar. It should be hosted by me. That's the reasons I will be leave today at 4:20, because 4:30 there is another webinar. So let's start. Uh, Everyone should be calm at 3 o'clock. So I think it will be better. Every day I come in 3 o'clock. So if also come in at 3 o'clock. ओके सर। That will Good be best. afternoon, sir. Good afternoon. Everyone should be calm in a time. Okay, sir. Sorry, sir. Next we start. Yesterday we are discussed about the relative address. Now with the help of relative address, what will be the instructions we have? Next, the first instructions today, JC. Yesterday I already discussed the relative address. Now I am discussed the JC. JC relative address. What are the full form of JC relative address? Is nothing but a jump on carry. If carry flag is set, then jump to the particular relative address. RADD, full form is relative address. Full form is relative address. Jump, if carry flag is set, then jump to the particular relative address. Jump, not carry flag, if not carry flag is not set or reset. If carry flag is reset, then jump to the particular relative address. If jump to the particular relative address, if carry flag is reset. Next, JB, full form is jump on bit. Jump on bit. If the particular bit address, is 1, if the particular bit address is 1, then jump to the particular relative address. If the particular bit address is 1, then jump to the particular relative address. So JBB relative address is nothing but a jump to the particular relative address if bit address is equal to 1. If bit address is equal to 1, then jump to the particular relative address. Next is JNBB relative address. So what are the full form of JNBB relative address? It's nothing but a jump to the particular relative address. If this bit address is nothing but a 0. If this bit address is equal to 0 or reset, means jump at not bit. Jump at not bit. Full form jump at not bit means particular bit address is 0, then jump to the particular relative address. What are the JBC? Full form of JBC is nothing but a jump on bit. If if a particular bit address is 1, and after the instruction this bit address will be 0, means if bit address is 1, then jump, and if 1, then jump, as well as the corresponding bit address will be 0. Bit address is already discussed.
2022F is a, we have a bit address, is called nothing but the address is 0027F. Rather than that, some bit address is also is there. So basically bit address is nothing but a JBC bit address, relative address is nothing but a, if the particular bit address is 1, then jump, and after the instruction corresponding bit address will be 0, right? Next, coming into the next, लास्ट वाला क्या बोले सर? लास्ट में ये वाला और ये वाला एक ही है, ये वाला एंड ये वाला एक ही है. क्या डिफरेंस है? jump if bit address, if this bit address is 1, here be same, jump on bit address is 1, ये bit address 1 होगा तो jump करेगा. एंड C का मतलब क्या है? आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस जो बीट एड्रेस में 1 रहेगा उसको क्लियर कर देगा. मतलब अलग से क्लियर करने का जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन से ही जंप भी करेगा एंड वो पर्टिकुलर बीट एड्रेस 0 भी करेगा. ओके सर. It's another very important instructions, that is, a CJNE, full form compare and jump if not equal. Compare and jump if not equal. Compare and jump if not equal. What are the functions is compare and jump if not equal? Is nothing but a compare and jump if not equal with accumulator and the particular address. The content of this particular address, the content of that particular address and the accumulator content, if both are nothing but a not equal, then jump. I'm repeat once again. Content of accumulator and the content of the address, if they are not equal, then jump to the particular relative address. I'm repeat once again. If the accumulator content and the address content, whatever the content of this particular address are not equal, jump, compare and jump if not equal. Full form CJNE, compare and jump if not equal. Compare and jump if not equal. So accumulator content and the address content, if both are not equal, then jump to the particular relative address. That is the functions. Next, sir, just see in the next, compare and jump. Here the address content, here the data is given directly. So compare and jump if not equal, if the content of accumulator and the data is given in the instruction itself. If both are not equal, then jump to the particular relative address. Similarly, RR with the particular data, if they are not equal, then jump to the particular relative address. CJNE at the rate of RP, N means the content of R0 here or R1, whatever it is, act as the address, and the content of that particular address and the content of that particular address and the content of that particular address are, content of that particular address, CJNE RP means either R0 or R1, or either R0 or R1. Compare with the, the content of R0 acts as the address, and the content of that particular address with these data are compared with each other. If they are not equal, then jump to the particular relative address. Similarly, it is another very important instruction, is nothing but a DJNZ, is nothing but a DJNZ, is nothing but a DJNZ. Is nothing but a DJNZ, right? So what are the functions of DJNZ? DJNZ nothing but a decrement the content of Rn by 1. Decrement the content of Rn by 1 and checking whether Rn is 0 or not. If Rn is not equals to 0, then jump to the particular relative address. DJNZ full form is nothing but a decrement and jump if not equal. Full form decrement and jump if not equal. The content of Rn is decremented by 1 and checking whether the Rn is 0 or not. If Rn is not equals to 0, then jump to the particular relative address. सर 8.5 के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो दो इंस्ट्रक्शन था, उधर एक डीसीआर बोल के एक इंस्ट्रक्शन था, उसके बाद हम लोग जेएनजेड करते थे. इधर दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ एक ही इंस्ट्रक्शन में. DJNZ Rn is nothing but a decrement the content of Rn by 1 and checking whether the Rn is 1 or not. If Rn is not equals to 1, then jump to the particular relative address. Next, DJNZ address.
the content of that particular address will be decremented by 1. The content of that particular address will be decremented by 1, and checking whether this data is 1 or 0. If it is 0, then jump. If it is 0, if it is non-zero, it is a non-zero, then jump to the particular relative address. The content of the address will be decremented by 1 and checking whether it is 0 or not. If not equals to 0, then jump to the particular relative address. JZ, in 8051 there is a no zero flag. In 8051 there is a no zero flag. With respect to 8085 may you have a zero flag, but over here it is not. There is a no zero flag. So JZ is nothing but basically check whether this relative address is 1 or 0. If this JZ is nothing but a checking the content of accumulator. If the content of accumulator is 0, then jump to the particular relative address. JZ is nothing but a checking the content of accumulator, whether the content of accumulator is 0 or not. If it is a 0, then jump to the particular relative address. And JNZ is nothing but a jump at not 0. If the content of accumulator is non-zero, then jump to the particular relative address. It's clear to all. If you have any kind of queries, you can ask me. Any instruction? सर इसमें जो पार्टिकुलर लोकेशन में जंप कर रहा है, तो मतलब क्या चीज जंप कर रहा है सर उसमें? क्या चीज जंप कर रहा है मतलब इंस्ट्रक्शन जंप करके उस लोकेशन में फिर से वहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा सर, मतलब इंस्ट्रक्शन जंप का मतलब क्या होता है? जंप करना मतलब उसमें मतलब वो इंस्ट्रक्शन वहां के बाद से आगे वाला काम करना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला हाँ सर। तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, अभी पढ़ो। जो स्टूडेंट 10 में 10 मिलेगा, मतलब 10 पॉइंट में 10 पॉइंट मिलेगा, उसको सेकेंड ईयर में पढ़ना नहीं है। 2 सेमेस्टर मिला के ईयरली गेट पॉइंट 10 रहेगा, उसको सेकेंड ईयर पढ़ना नहीं है, थर्ड ईयर में जाकर पढ़ेगा। बहुत पहले ऐसा नियम था। अच्छा। प्रमोशन, डबल प्रमोशन बोलते थे हम लोग। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए वो किधर चला जाएगा? सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट हम प्रोग्राम के हिसाब से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चेकिंग योर मार्क्स इज 10 और नॉट। इफ योर मार्क्स इज 10, yearly get point is 10, then jump to the class 3 or jump to the third year. Otherwise फर्स्ट ईयर के बाद क्या होता है? सेकेंड ईयर में जाओगे। यस सर। कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो जंप कर जाएगा। ये रिलेटिव एड्रेस, जो रिलेटिव एड्रेस हम देंगे उसमें जंप कर जाएगा। ठीक है सर। Anything else? Anyone wants to know anything? Anything, any requirement you can say? ये सारे इंस्ट्रक्शन सर याद कैसे रहेंगे? प्रोग्रामिंग करते करते याद रहेगा या ऐसे ही? प्रोग्रामिंग करते करते हमको कैसे याद है सर? नहीं सर, जैसे लिखते लिखते या फिर प्रोग्रामिंग करते लिखते प्रोग्रामिंग करते करते अलजेब्रा फार्मूला याद है? a plus b whole square is equal to a square plus 2b plus b square. हाँ सर। What is the formula of 4ab? हाँ सर। What is the formula of 4ab? 4ab का फॉर्मूला सर नहीं समझे सर, क्या है? 4ab का एक फॉर्मूला होता है। 4ab is equal to क्या होता है? नहीं, याद नहीं आ रहा। a plus b whole square minus a minus b whole square। करके देखो, 2ab and 2ab 4ab हो जाएगा। ठीक है सर। तो ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा ही इसका भी फॉर्मूला है। इंस्ट्रक्शंस करते करते याद आएगा क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। यस सर। जब एक प्रोग्रामर बन जाओगे, whenever you can write the program, you can see a copy like a program। एक कॉपी में कुछ नहीं लिखा रहेगा, मगर तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा। यही है प्रोग्रामर।
अच्छा, सारा तुम्हारा मन में आ जाएगा, अभी धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना है। ओके सर। You know, this is a jump. There are three kind of jump actually. One is jump, whatever I discussed, that is the relative jump. Another is called absolute jump. Another is called absolute jump. And the last one is called long jump. A jump is nothing but an absolute jump. L jump is nothing but a long jump. A jump is nothing but an absolute jump, and L jump is nothing but a लॉन्ग जंप। सर रिलेटिव एड्रेस में तुम जंप कर सकते हो 00 to 7F in forward, 80 to FF in backward, but you know a jump is an absolute jump is nothing but a 11-bit address. Either you will be get 11-bit address, not 8-bit address. So you can jump within the 2K range, within the 2K memory locations. How 2K? 11 address bus matlab 2 to the power 11. So 2 into 2 to the power 10, that is, you know, 2K, within the 2K memory locations. What is the L jump? L jump is nothing but a long jump. L jump is nothing but a long jump. Long jump relative address. What are the functions of long jump relative address? You know, nothing but a, it's a 16-bit address. It's a 16-bit address. 16-bit address means 16-bit address means, you know, you can jump 2 to the power 16 means within the 64K any memory locations. And short jump is nothing but it will be related with a relative address. This kind of jump is not depend upon the any kind of conditions. So this is a called unconditional jump. अनकंडीशनल जंप, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैंने पिछला जितना सारा जंप दिखाया, सारा आइदर कैरी फ्लैग सेट और रीसेट, आइदर बीट इज 1 और 0, आइदर यू नो 0 accumulator content is 0 or not, either you know compare with the two data whether it is not equal or equal, then jump, or in a DJNZ decrement if checking the 0 or not, if not 0 then jump. So in this way, these are the called conditional jump, means one upon a conditions it will be jump, and those are the nothing but a unconditional jump. Those are the nothing but a unconditional jump. Is it clear? It's clear to you? इसमें सर जो है मतलब A अलग मतलब है, मतलब 2K वाला मेमोरी में मतलब जो होगा एड्रेस जो होगा, जंप करना चाहता है वो तुम जंप कर सकते हो तो विद इन द 2K। यस सर। और 16 वाला में 16 का जो मतलब 64K का किसी भी 16 मतलब मतलब 64K के अंदर किधर भी जंप कर सकते हो। और पहला वाला सर जो जंप किया है A प्लस DPTR, उसमें हाँ, दोनों का ये एड्रेस कुछ दोनों नहीं, ये भी 11 बिट का एड्रेस ही होगा। ये क्या है ना, ये देखो DPTR में जो एड्रेस रहेगा उसके साथ एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट रहेगा, उस मेमोरी लोकेशंस में जो कंटेंट है उसी में जंप, उतना भी जंप करेगा। मतलब ये इज नथिंग बट 8 बिट एड्रेस, मींस इट इज अ रिलेटिव एड्रेस, इट्स अ शॉर्ट जंप। मतलब सर उसमें दोनों का एड्रेस को पहले किया जाता DPTR में जो है उसके साथ एक्यूमुलेटर कंटेंट जुड़ेगा। से DPTR में थाउजेंड्स है, एक्यूमुलेटर में 10 है, दोनों को जोड़ने से क्या होता है 1010। यस सर। 1010 मेमोरी लोकेशंस में जो कंटेंट है उतना जंप करेगा, मतलब वो रिलेटिव एड्रेस ही होगा 8 बिट एड्रेस। एक्चुअली एड्रेस नहीं दिए सर हम बोलते हैं तुमको जाम करना है, मान के चलो 2 कदम जाम करना है तो तुम खुद से कर सकते हो। तुमको 10 कदम जाम करना है तो एक सॉलिड यू नो डंडा लेकर तुम उसके ऊपर प्रेशर देकर तुम जा सकते हो। तुमको Yes, इधर sir. से दिल्ली जाम करना है तो Yes. तुमको फ्लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर। फ्लाइट में चढ़ के जाम करके दिल्ली में पढ़ना है। तो ये थ्री टाइप का जाम, एस जाम, ए जाम एंड एल जाम। कितना दूर जाम करना है उसके हिसाब से ही इन तीनों को तुमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। उस ऊपर वाला में सर एड्रेस नहीं दिया हुआ है, मतलब किसमें जंप करना है, सबसे ऊपर वाला में जंप @DPTR दिया हुआ है। ये जो है DPTR में मान के चलो 1000 है, एक्यूमुलेटर में मान के चलो इनिशियली 10 है। ये इंस्ट्रक्शंस के पहले, मान के चलो DPTR में 1000, एक्यूमुलेटर में 10, दोनों को जोड़ने से क्या होता है 1010। हाँ सर। ये 1010 मेमोरी लोकेशंस जो है ना, 1010 मेमोरी लोकेशंस, हाँ सर।
ये 1010 मेमोरी लोकेशंस का मेमोरी लोकेशंस में जो कंटेंट है उतना घर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप करेगा. मींस दिस इज नथिंग बट a one kind of short jump, that is the relative address. ओ मतलब उसके अंदर जो एड्रेस है वो उसमें उस रेंज में चला जाएगा ना सर? उस मान के चलो 1010 में, मान के चलो कॉपी में देखो, मान के चलो 1010 में तुम्हारा AB है. AB मतलब कौन सा रेंज में पड़ता है? 802FF के अंदर पड़ता है. तो बैकवर्ड जंप करेगा AB. मान के चलो 05 है तो क्या है? 5 घर जंप करेगा फॉरवर्ड. यस सर. मतलब लोकेशन उसका हो जाएगा सर 1015 हो जाएगा. मतलब 1015 नहीं होगा. तुम एक के डेटा साथ सर दूसरे को अलग करो. यू नो प्रोग्राम रन कराता है वो प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू के ऊपर जंप करेगा, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू. और ये क्या है? ये तो DPTR है. ये तो एक एड्रेस स्टोर करने वाला रजिस्टर्स है और कुछ नहीं. DPTR के मान के चलो 1000 है, एक्यूमुलेटर के मान के चलो 10 है. 1000 प्लस 10 1010 एट द रेट ऑफ है ना. ये एट द रेट ऑफ है ना. एट द रेट ऑफ मतलब क्या है? 1010 मेमोरी लोकेशंस. व्हाट आर द कंटेंट? maybe AB, maybe 05, maybe any value, maybe 8-bit value. 8-bit value means 0027F, so it will be forward jump. 802FF means it is a backward jump. It will be backward jump. Forward jump, backward jump. 0027F, forward jump. 802FF, backward jump. ओके सर. सर हाँ बोलो. ऑपरेशन का हाँ बोलो. सर नो ऑपरेशन नॉप वाला ना बोला तो बोला ही नहीं अभी तक. अभी तो बोलेंगे. तुम्हारा अभी काम क्या है विनीता सिंह? घर में काम क्या है? घर में काम क्या है? सर पढ़ना है. मीन्स क्या पढ़ना है? हेलो, यही सब्जेक्ट सब अपना सेमेस्टर का. কোনটা? পাঠাচ্ছি স্যার, একটা ক্লাসে আছি তো পাঠাচ্ছি, বিকালে পাঠাচ্ছি. বিকালে পাঠিয়ে দেবো. করে দিচ্ছি স্যার, বিকালের মধ্যে করে দিচ্ছি. हाँ बोलो बोलो. सर बोले अपने सेमेस्टर का सब्जेक्ट सब पढ़ना है. वाह वाह, क्या दिया मैंने. हम तो बड़ो दीवाना हो गया. सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ाई छोड़ के बोलो. काम बहुत कम घट गया. अभी मूवीज देखना घर में बहुत मुश्किल है. हैं, फ्रेंड लोगों के साथ गॉसिप करना भी मुश्किल है कि नहीं? यस सर. तो अभी तुमको एक मैंने काम दिया. क्या काम? चाल डाल घर में है ना, चावल और यू नो दाल, क्यों क्या बोलते है तुम लोग? सर दाल ही बोलते हैं. चावल दाल एक साथ मिला लो. 100 ग्राम ले लो, एक साथ मिला लो, उसको फिर से दोबारा अलग करो. नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा. टाइम लगेगा मतलब काम क्या होगा? शुरुआत में क्या था? चाल डाल अलग अलग ही था. यस सर. उसको मिलाया, फिर यस से अलग किया. मतलब तुमको क्या करवाया? कुछ काम नहीं करवाया. व्हाट आर द आउटपुट? टोटली जीरो. यस सर. एक काम देना है इसलिए दिया. सो नो ऑपरेशंस इज जस्ट लाइक दैट. इज ए नो ऑपरेशन, नो फंक्शंस. ओनली you know increase the time delay. Only increase the time delay, nothing else. Only increase the time delay. It's clear? अभी Yes, हमारा sir. प्रोग्राम में आएगा, हम प्रोग्राम कराएंगे what is the functions of NOP. Then you will be able to understand what are the NOP functions. NOP is nothing but a no operations. Basically कुछ functions नहीं करता है. सिर्फ 1 machine cycle लगता है, उसके लिए 12 t-state लगता है. 1 machine cycle लगता है, उसके लिए 12 t-state लगता है. तो एक मशीन साइकिल बढ़ जाएगा और कुछ नहीं काउंटिंग का टाइम में. एनओपी का फंक्शंस कुछ भी नहीं है, जीरो. ये डिले बढ़ाने के लिए यूज होता है, टाइम बढ़ाने के लिए. राइट? यस. फोर्थ वाला क्या बोले? फोर्थ वाला 1 2 3 4 एस जंप सीरियल. ये है शॉर्ट जंप. एस जंप है शॉर्ट जंप. शॉर्ट जंप मींस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. मैंने बोला तुमको 2 कदम जंप करना है. अभी उसमें गड्ढा है कि नहीं है, ये पहले बोला था गड्ढा है तो जंप करना.
अभी बोला किसी को देखना नहीं है, तुम हर एक बार जब आओगे हमारे पास 2 स्टेप जाम करते करते आना। तो तुम किसी का बात मत सुनना, गड्ढा है कि नहीं है तुमको देखना नहीं है, हर एक बार 2 स्टेप जाम करते करते आना। मीन्स इट इज अनकंडीशनल जाम, कोई कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो इट्स कॉल्ड नथिंग बट सीरियल जाम, serial jump relative address. It's clear? Yes, sir. One is a call, you know, a call, absolute call. Call means call subroutine. I will discuss how call will be, you know, operate. Call कैसा है? मान के चलो, मैं एक लाइन पढ़ा रहा हूं, क्या लाइन पढ़ा रहा हूं? PC. PC is nothing but a program counter, and you know it is a store the next instruction to be executed, the address of the instruction stored into the PC. That is the function of program counter. तो हर एक बार जब पढ़ाऊंगा मैं प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन दोबारा बताऊंगा, मैं सिर्फ प्रोग्राम काउंटर बोल के चला जाऊंगा। मतलब पढ़ाने के अंदर प्रोग्राम काउंटर मतलब तुमको रिकॉल करना है प्रोग्राम काउंटर क्या है, वो वाला डेफिनेशंस। मतलब एक बड़ा प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेप सिमिलर रहता है, उसको अलग से लिख के उसका एड्रेस वो मेन प्रोग्राम में दे सकते हो, यही है फंक्शन। ये जो सब प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं, ये सब प्रोग्राम को बोलते हैं सबरूटीन। I will be coming on in the subroutine or subprogram. We have several kind of subroutine or subprogram. So it's nothing but a call is called absolute call, and L call is a long call. Absolute call within the 11 address means within the 2K memory locations, and long call is nothing but a 16-bit address means within the 64K. That's the difference. RET is nothing but a return from the ये जो मैं कॉल जो कर रहा हूँ उसके लिए रिटर्न यूज करना पड़ता है। लास्ट लाइन ऑफ द यू नो सबरूटीन ऑलवेज RET, इट इज अ रिटर्न फ्रॉम द इंटर यू नो सबरूटीन, एंड RETI is nothing but a return from interrupt subroutine. Return from interrupt subroutine. What do you mean by interrupt subroutine? What is the you know call subroutine or interrupt subroutine? कुछ देर पहले एक फोन आया था, देखा? यस सर, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक फोन आया था। दिस इज जस्ट लाइक ए इंटरप्ट, दिस इज जस्ट लाइक ए इंटरप्ट। यस So सर। what will be my performance is just I stop you know to teach you you know to given the lecture on you, but I just hold my phone and you are told that it will be given in the evening or you know afternoon, whatever it is. Then again I come back in your study, means one interrupt is coming, I execute his program or her program, then I come again into the main program. So basically whatever I might done, it is a coming on one interrupt, I you know execute the interrupt, again coming into the main program. This is nothing but a interrupt subroutine or any kind of subroutine जो मेन प्रोग्राम के अंदर कभी कभी आ जाता है, राइट? क्लियर? सर इसमें दिखता कैसे होगा, मतलब इसमें सबरूटीन में मतलब ऐसा क्यों किया जाता है सर? मतलब इसमें क्या? सबरूटीन जैसे देखते हैं ना सर, छोटा छोटा बना के दिखाया जाता है इस प्रोग्राम में। देखो 2000 लाइन का प्रोग्राम है। यस सर। अच्छा एक बार कॉपी में देखो, यस सर। सब रूटीन क्या है समझा देते हैं। दिन भर सिर्फ हम यही करते रहते हैं, एडमिट करो और एडमिट करो और एडमिट करो, कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। देखो हमारा कॉपी में देखो, से मान के चलो दिस इज ए प्रोग्राम, दिस इज 2000 लाइन प्रोग्राम। हाउ मच? 2000 लाइन। इधर 20 इंस्ट्रक्शंस, इधर 20 इंस्ट्रक्शंस, इधर 20 इंस्ट्रक्शंस, इधर 20 इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली सेम, बेसिकली सेम।
आई एम रिपीट वंस अगेन, इधर में लगातार 20 इंस्ट्रक्शंस, इधर लगातार 20 इंस्ट्रक्शंस, इधर लगातार 20 इंस्ट्रक्शंस एंड इधर लगातार 20 इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली सेम, एकदम सेम टू सेम है। कहने का तो मतलब देखो क्या है एक ही इंस्ट्रक्शंस, इधर 20 बार लिखे, इधर 20 बार लिखे, इधर 20 बार लिखे, इधर 20 बार लिखे, 80 बार लिखे। यस सर। ये ना कर, ये ऐसा हम करेंगे नहीं। इसके बदले में क्या करेंगे, ये 20 लाइन हम एक दूसरा जगह में लिखेंगे। लिखा है? यस सर। यस सर। मान के चलो ये प्रोग्राम था 8000 से, ठीक है? यस सर। ये प्रोग्राम मैंने लिखा 9000 से। ये प्रोग्राम जो लिखा 20 लाइन का प्रोग्राम जो है वो 9000 से लिखा है, ठीक है? यस सर। ये प्रोग्राम का लास्ट लाइन होगा RET। यस सर। अभी हम ये 20 लाइन के बदले में हम लिखेंगे क्या, कॉल 9000H। अच्छा। ये इधर ए कॉल यूज कर सकते हो और एल कॉल यूज कर सकते हो, जो भी डिपेंड करेगा 2K के अंदर क्या 2K से ज्यादा। सिंपल कॉल का इसमें नहीं होता है सर, मतलब इंस्ट्रक्शन ओनली कॉल? कॉल के जगह जगह में ही तो ए कॉल है, एल कॉल है। ओ, मतलब अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो कौन वाला जाएगा सर? ना स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन ही तो नहीं है, कॉल बोल के कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ओके सर। अभी तुम मान के चलो ए कॉल लिख दिया, 2K यस के सर। अंदर नहीं हो रहा है, तब एरर दिखाएगा, तब तुमको ए कॉल के जगह में एल कॉल करना पड़ेगा, यस सर। राइट? तो देखो इधर से जंप करेगा इधर, हाँ सर। फिर रिटर्न करेगा इधर से इधर, मतलब लास्ट लाइन ये 20 लाइन इधर से इधर एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली इधर में भी हम लिख देंगे कॉल 9000, कॉल के जगह में एक कॉल लिख देंगे, ये कॉल 9000 9001 से शुरू होगा ना अब सर? ना 9000 से शुरू होगा। इधर में भी लिखेंगे ए कॉल 9000, इधर में भी लिखेंगे ए कॉल 9000। सर ये कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि एक बार तो आप 9000 ले लिए वहां से, वो तो खत्म हो गया, उसके बाद से आगे चलेगा ना प्रोग्राम? ना सर, एड्रेस तो आगे बढ़ते जाएगा। 8000 अच्छा से 9, 8000 से 9000 आप लिए हैं सर, अच्छा, तो फिर 9000 खत्म हो जाएगा जहाँ, फिर वहां से बाद कभी नहीं वहां से खत्म होगा, आगे। कभी नहीं खत्म होगा। हम बोलते हैं एग्जांपल देने से तुमको समझ में आएगा। तुम्हारा लॉन्च मतलब क्या है जानते हो? हाँ सर। लॉन्च मतलब क्या है तुम जानते हो? हाँ सर। जानते हो। ब्रेकफास्ट मतलब क्या है तुम जानते हो? हाँ सर। डिनर मतलब क्या है तुम जानते हो? हाँ सर। स्टडी मतलब क्या है तुम जानते हो? हाँ। अभी मैंने तुमको बोला तुम एक्सप्लेन करो जो तुम्हारा डेली रूटीन। यस तुम सर। बोला सर सुबह में उठ के हम ब्रश ब्रश करके हम स्टडी करते हैं, देन सर यस सर। ब्रेकफास्ट, और यस सर। फर्स्ट ब्रेकफास्ट देन स्टडी, यस सर। then I take lunch, then यस सर। I take rest, and then यस। sir I take any kind of tiffins, and then I do my study, and again dinner। यस सर। ये होगा ना? हाँ सर। मगर ये सही है, सही बोला। लंच क्या है? लंच के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, तुमको इलाबोरेट करना है तो पूरा पूरा बोलना पड़ेगा। अभी हमको क्या करना है, वो छोटा छोटा प्रोग्राम में घुसना पड़ेगा। वाह तुम लॉन्च किया तो लॉन्च में क्या क्या किया, देन विल बी एक्सप्लेन वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन। अच्छा। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो छोटा छोटा प्रोग्राम है, जो लॉन्च मतलब क्या है अलग जगह में लिखा हुआ है, डिनर मतलब क्या है वो अलग जगह में लिखा हुआ है, एंड ब्रेकफास्ट मतलब क्या है अलग जगह में लिखा हुआ है, स्टडी मतलब क्या है अलग जगह में लिखा हुआ है। हम चाहे तो वो छोटा छोटा प्रोग्राम देख सकते हैं, मगर मेन प्रोग्राम जो है, जो सिंपल प्रोग्राम है, वो सिर्फ उधर उधर कॉल करेगा और उधर से आ जाएगा।
तो सर लंच एंड मतलब डिनर उसमें को हम लोग तो एक ही बोल सकते हैं। हमारे हाँ हमारे पास लंच एंड डिनर एक ही है, तुम्हारे पास यस अलग हो सर सकता है। हम दोनों पास चावल ही लेते हैं, तो हमारे पास लंच एंड डिनर बेसिकली सेम। तो हम प्रोग्राम छोटा करेंगे। हम क्या किया, ब्रेकफास्ट, स्टडी, लंच, you know, again study, you know, then again study, you know, again lunch, and you know, take rest. डिनर यस को सर लंच बोलने से प्रॉब्लम क्या है? एक ही तो चीज है, खाना खाना है, और क्या है? हाँ सर तो देखो, लंच 2 बार मैंने यूज किया एक ही दिन में। यस सर तो एक प्रोग्राम लिखने से दोनों काम नहीं हुआ। हाँ दोनों काम हो गया एक ही तो से इधर में भी तो वही कर रहे हैं। कॉपी में देखो, इधर से यस कॉल कर रहे हैं 9000, इधर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब यस रिटर्न आ रहा है, जिधर से कॉल किया था ठीक नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यस सर फिर इधर से कॉल करेगा, इधर से चला जाएगा 9000 में, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। जिधर से रिटर्न था ठीक जिधर से कॉल किया था उसके बाद में चला जाएगा। रिटर्न मतलब रिटर्न का काम वही होता है। अच्छा फिर इधर से कॉल करेगा, इधर चला जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। रिटर्न जब मिलेगा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इधर से कॉल करेगा, इधर चला जाएगा, फिर लास्ट लाइन जब मिलेगा तो इधर आ जाएगा। मतलब एक ही सब रूटीन को मतलब बार एक बार ही कॉल सब कर रूटीन सकते को हैं बार बार हम कॉल कर रहे हैं। एक ही प्रोग्राम को हम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा मतलब अलग अलग सब रूटीन भी हो सकता है मतलब डाल सकते हैं हाँ, तो अलग अलग सब रूटीन भी हो सकते हैं। हाँ तो उसमें फिर रेंज उसका चेंज करना पड़ेगा सर हाँ, हाँ जो एड्रेस का जो रेंज रखें उसको चेंज करना पड़ेगा अलग अलग रखेंगे तो बुझते वाला ना, नहीं समझ में हाँ आया। सर जैसे कि आप ऊपर वाला रखे हैं तो ऊपर वाला को मान लेते हैं 9000 से और जो रिटर्न खत्म हुआ वहां से लंच मान लेते हैं हाँ, और फिर स्टडी स्टडी के लिए फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके बाद जहां से खत्म हुआ है उसके बाद मतलब वहां से स्टार्ट करेंगे स्टडी के ये लिए नहीं मतलब हो रहा अलग है। अलग रखना पड़ेगा ना अलग से मतलब सब रूटीन स्टडी ये के लिए प्रोग्राम के अंदर, ये जो प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर नहीं रहेगा। सब रूटीन इज नथिंग बट ए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एंड डिफरेंट प्रोग्राम। हाँ सर लेकिन लंच और डिनर तो एक ही मान रहे हैं लेकिन स्टडी को तो अलग मानना पड़ेगा ना उसका हाँ, मानना पड़ेगा। ये ऐसा ऐसा 9000 जैसे एक सब रूटीन हुआ, इधर देखा जाएगा तो और 10-10 लाइन एक ही है, और 10-10 लाइन एक ही है। तो इसके लिए 10-10 लाइन बार बार नहीं लिख के ये 10 लाइन दूसरा कोई जगह में लिख देंगे। मान के चलो 9100 में लिख देंगे। यस सर इधर कॉल करेंगे, एक कॉल 9100, बस हो गया। हाँ सर वही बोल रहे हैं सर मतलब जो है उसका एड्रेस 9000 ना लिख करके वहाँ 9100 या फिर कुछ अलग 9100, लिखेंगे ये एड्रेस छोड़ के, ये एड्रेस छोड़ के, वही तो हम हाँ भी कुछ बोल रहे हैं। ये एड्रेस छोड़ अलग के, ये एड्रेस छोड़ के दूसरा जगह में तीसरा जगह में लिखना हाँ कुछ अलग लिखेंगे पड़ेगा। हाँ, हाँ, वही बोल रहे हैं सर वही ठीक है सर समझ गए इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर हाँ, बोलो सर एक कॉल क्यों, सिर्फ कॉल से भी तो कॉल हो जाएगा। ना। ये दोनों टाइप का कॉल है। इधर में बोला है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा किधर जाम करना है। वो 85 में सिर्फ कॉल था, इधर में 2 कॉल है। एक ए कॉल है, एक एल कॉल है। एक है 11 बिट एड्रेस, एक है 16 बिट एड्रेस। 11 के बिट एड्रेस मतलब 2 to the power 11 मतलब within the 2K you can jump anywhere, and 16K address means you can jump within the 64K anywhere. यस So देखो, ये within the short address you can jump within the 2K, the long address you can jump within the 64K bytes. And relative address is nothing but a difference between two 16-bit address or two 16-bit number, whatever you say. यस And whatever I explain, that is a relative address. Now there is a program with a relative address. Forget about the program. Program में क्या लिखा है भूल जाओ। ये है hex code. तुम लोग 85 में hex code ढूंढ के निकालते थे ना? You know, in यस सर 8051 is not required. It will be automatically generate. That's why there is a software. That's why there is a software which is automatically generate, right? तो सॉफ्टवेयर में कैसे जनरेट होगा सर? क्या क्या कैसे करेंगे हम? Now I will be discuss one by one.
So this is the hex code. This is the memory locations which is stored into the किसके अंदर? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, एग्जैक्टली। ये जो मेमोरी लोकेशंस है, इधर इज द कौन सा मेमोरी लोकेशन में प्रोग्राम मैंने लिखा है वो किधर स्टोर है? सिर्फ प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो पाएगा। ये सीरियल नंबर, इसके बारे में छोड़ दो। नेक्स्ट ये हेक्स कोड कैसे आ रहा है वो दैट विल बी डिस्कस। मींस मैंने बोला था ना, जो 4 घर जाम करेगा तो तुमको 04 लिखना पड़ेगा, बैकवर्ड 4 घर जाम करेगा तो तुमको -04 लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द वन काइंड ऑफ एग्जांपल। जस्ट सी जेजेड नेक्स्ट कौन सा लाइन में लिखा है सर? 247 नीचे वाला लाइन 277 लोकेशन 0004 में लिखा है जेजेड नेक्स्ट। यस जाम करेगा नेक्स्ट किधर है? इधर 9 में। सो जब ये है, बोलो ये समझ में आया कि नहीं? नहीं समझे सर, कैसे एक बार फिर से। जेजेड नेक्स्ट इधर से जाम करेगा, इधर आएगा। हम बोल रहे हैं ये इंस्ट्रक्शंस किधर लिखा है? 0004। नेक्स्ट किधर है? 0009। तो 04 से 09 जाम करेगा। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। एनी क्वेरीज? नहीं बोलो नहीं समझ में आया? सर एक बार बताओ। हाँ, जेजेड नेक्स्ट what are the functions JZ next? Means jump from this line to that line, jump from this line to that line. ये instructions किधर लिखा है सर? 0004 में। किधर जाम करेगा सर? नेक्स्ट 0009 में। अभी हम कुछ बोला ही नहीं, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है। सिर्फ हम एड्रेस बोला। 0004 में ये इंस्ट्रक्शंस लिखा है, ये जाम करना चाहता है 0009 में। ठीक, इट्स क्लियर? यस सर। तो ये जब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर? जब ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट मतलब जब जेजेड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर? 009 नो सर, 0006। 0006। यस सर। मैंने कल बोला था सर, याद करो, ये कितना बाइट का इंस्ट्रक्शंस है? मैंने बोला 2 बाइट का। मैंने बोला जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन शुरू करेगा प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू 0006। यस सर याद आ गया। 06 से किधर जाम करेगा? इट विल बी जंप टू द 9। सो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, कितना घर? 1 2 3 बाइट हो जाएगा। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3। दैट्स व्हाई देखो जेजेड नेक्स्ट के लिए हेक्स कोड क्या लिखा? जेजेड के लिए मैंने लिखा 60 एंड नेक्स्ट के लिए मैंने लिखा है 03। इज इट क्लियर? नहीं सर, एक बार कैसे 6003 कैसे? 60 जेजेड का ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। कैसे मतलब? ये तो हर एक का अलग अलग हेक्स कोड है। हेक्स कोड जनरेट करने के लिए हम लोग के पास एक सॉफ्टवेयर भी है। आई विल बी डिस्कस लेटर ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। बट अभी मान के चलो जेजेड के लिए 60 है, ये 03 नेक्स्ट के लिए आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है? देखो ये 06 था प्रोग्राम काउंटर में, जाएगा किधर? 9। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 3 बाइट जंप करेगा। That's why 03. It will be jump 3 byte. That's why 03. It's clear or not? Yes sir। It's clear? हाँ सर। देखो 03 कैसे आया वो समझाया मैंने। 03 3 बाइट जाम कर रहा है इसीलिए 03। ये हेक्स कोड तुमको जनरेट करना नहीं है, ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम तुम लिखोगे तो ये आपसे आप आ जाएगा। बट यू आर ए इंजीनियर, नॉट यू आर ए वर्कर।
You should be know how to generate the hex code, how next is equal to 03. It should be known by you because you are an engineer, not a worker. प्रोग्राम Yes, लिखना है, हेक्स कोड जनरेट करना है, ये वर्कर का काम होता है. बट 03 कैसे आया ये जानना एक इंजीनियर का काम होता है. yes sir. That's why I explain you, right? Yes sir. अभी देखो JNC ओवर किधर जंप करेगा. ओवर मतलब इधर 0012 0012 मतलब ओवर लिखा है, इधर 0012. ये इंस्ट्रक्शंस किधर लिखा है. 00B. यस सर. मैं फिर से बोल रहा हूँ. JNC ओवर लिखा है 000B में. JNC ओवर लिखा है 000B में. जिधर देखो अभी हमारा कास्टर रेड वाला कास्टर जिधर हमें लगा के रखा है. ओवर किधर लिखा है. ओवर लिखा है 0012 में. 0012 में. सो जब JNC ओवर एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगा, what will be the value of program counter means whatever the address of program counter. ई में सर 000D exactly. Thank you. 000D. So जब ये instruction start to execute, program counter automatically 000D. So from 000D to 12, D2 E1, 1 E2 F2, F2 103, 102 114 and 112 112 is 5. So it will be Yes, 05. That's why it is a 05. और 50 अपने आप से ले रहा है सर. अब 50 भी अपने आप से लेगा, 05 भी अपने आप से लेगा, मगर 05 कैसे आ रहा है वो समझाने के लिए मैंने ये दिखा रहा है. 50 के नहीं पता चला सर. 50 JNC के लिए. वो JNC का कोड है. देखो JNC का अर्क उधर है प्रोग्राम में है. JNC इधर. यस सर. क्या है इसके लिए 50. यस सर. यस सर. समझ गए. JNC का ऑटोमेटिकली 50 ही होगा. यस. सिर्फ ये चेंज हो गया है F2 and 05. इसके लिए कोई तुमको समझने का बात नहीं है. It will be fixed, but how to 05, that is very important. That's I explain you. यस. सर Is it clear? 00D से क्यों ले रहे हैं. 00D से क्यों ले रहे हैं, B से क्यों नहीं ले रहे हैं. जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन शुरू करेगा ना, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली चला जाएगा 000D में. कैसे. तुम्हारा रोल नंबर कितना है. 16. मैंने जब 15 को डांट रहा था और पिटाई कर रहा था, तब हमारा नजर तुम्हारे ऊपर था. जब हम इसके बाद इसको पिटाई करेंगे, ये घर से ना निकल जाए, राइट. तो Yes, sir. जब मैंने एग्जीक्यूशन कर रहा था ऑन 15, मतलब 15 के ऊपर जब मैंने एग्जीक्यूशन मोड डाल रहा था, मतलब उसके जब पिटाई कर रहा था, सो आई विल बी partially focus on you, means my program counter is store your value, that is roll number 16. Yes sir. So whenever these instructions start to execute, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा, उतना देर तक प्रोग्राम काउंटर चला जाएगा 000D में. प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली लोडेड द वैल्यू ऑफ 000D. Yes sir. Yes sir. इसीलिए D से 1-2 तक. अभी देखो JNC अगेन. JNC किधर लिखा है. 0013. अगेन किधर लिखा है. और अगेन लिखा हुआ है ऊपर में 0007. 0007. यस तो सर. 0013 बैकवर्ड जा रहा है सर. बैकवर्ड जाएगा. 0013 में इंस्ट्रक्शंस लिखा है और जाएगा 0007 में. ठीक है ना. यस सर. अभी जब ये 0013 वाला इंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, मतलब जब JNC स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू क्या होगा. 0015. एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली, थैंक यू. तो 0013 जब स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली 0015. सो हमको एक्चुअली 15 से 7 तक जाना है.
यस सर। 15 से 7 तक जाना है। अभी हमारा कॉपी में देखो, प्रॉब्लम समझ गया? 15 से 7 तक जाना है। यस सर। अभी देखो कैसे हो रहा है। तुम लोग भी कर सकते हो। देखो इतना घर हमको जाम करना है। यस सर। ये 15 से लेकर 7 तक हम सारा लिखे हैं, ठीक है? सर कैसे डिसाइड हुआ कि 7 तक जाना है? 7 तक इधर ये जो 7 में ही तो लिखा है ना। ओवर किधर लिखा है? अगेन किधर लिखा है? अगेन किधर लिखा है? यस सर 7 पे लिखा है। 7 पे लिखा है। तो जब 13 में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा था तो 15 तो चला गया था प्रोग्राम काउंटर। तो 15 से हमको जाना पड़ेगा 7 तक। यस सर यस। तो कितना बाइट जाम करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टाइम्स जाम करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। तुम काउंट करके देख सकते हो। 15 से 7 जाओगे तो 14 टाइम्स जाम करना पड़ेगा। 14 मतलब 0E, राइट? यस सर। बैकवर्ड जंप कर रहे हैं मतलब -0E। Yes, sir. -0E मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करो। 0 0 0 0 टूस 1 कॉम्प्लीमेंट 1 करना 1 0 टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट Yes, sir. माइनस करना है। तो क्वाड 1 हो जाएगा 4 1 को 0 is 1 0 अनचेंज। इधर से देखना है लास्ट 1 0, लास्ट नॉन जीरो टर्म अनचेंज। सो 1 0 अनचेंज। 0 0 1 1 1 1 it's a F, it's a 2 F2 यस just सर। see, it's F2 F2 यस सर। 5 0 JNC के लिए, अगेन के लिए F2। देखो इधर में भी JNC था, उधर उसके लिए भी 5 0 था, मगर इधर 0 5 था, मगर इधर F2 है। यस सर समझ गए। राइट? यस सर। अभी बोलो ये नेक्स्ट वाला हियर इज जंप हियर। वहीं पर घूमते रहेगा सर। हाँ घूमते रहेगा वो वहीं पे घूमते रहेगा, मगर ये कैसे आएगा हेक्स कोड? ये किधर से किधर जंप करेगा? एनीवन कैन एक्सप्लेन? आई विल बी वेरी हैप्पी। बोलो ना, भूल होगा तो क्या होगा? हेयर से Sir, बोलो। sort प्रोग्राम काउंटर फिर 17 में जाएगा। हाँ फिर 17 में उसके जाएगा। बाद फिर 15 में फिर आना वहीं से। पड़ेगा। यस सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, अभी ठीक जा रहे हो, बोलो। बैकवर्ड 15 में जाएगा, मतलब हाँ, तो 15 कितना बाइट? आना है। तो कितना बाइट? 2 बाइट हुआ, 2 हुआ, फिर हाँ उसका 2 हुआ। -02 तो 2s कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। 2's complement 0 0 0 0 0 0 1 0 1। यस सर। 1 0 अनचेंज। कॉपी में देखो हमारा कॉपी में देखो 1 0 अनचेंज। यस सर। 1 1 1 1 1 1 that is F, that is E, FD just see FE। यस सर। यस सर। हम फिर से एक बार बोल देते हैं। हियर इज जंप हियर कौन सा मेमोरी लोकेशंस में लिखा है? 0 0 1 5। तो जब ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इनटू द 0 0 1 7। So from 0 0 1 7 to it will be 0 0 1 5, means 7 to 16, 16 to 15. 2 bytes jump means 0 2. As it is a backward, so it is -02.
minus Yes. 0 to 2's complement, it will be FE. Clear to all of you? Clear to all of you? अगर सर वो 18 में होता तो कौन सा में? 0007 में होता तो here 0007 में होता तो समझ में नहीं आया। मतलब तुम बोल रहे हो हेयर इधर नहीं लिख के 017 में लिखा हुआ है, हाँ तो जाम करने का जरूरत की है? वो तो नॉर्मल स्टेप ही है। जाम मतलब क्या होता है? तुम जो नॉर्मल स्टेप ले रहे हो उसमें जाम के उससे बीच में अंतर क्या होगा बोलो? कम से कम एक स्टेप को तो तुमको जाम करके जाना पड़ेगा। तुम हाँ। सीढ़ी में चढ़े हो कभी? क्या सर? सीढ़ी ऊपर में स्टेप्स हाँ में कभी चढ़े हो कॉलेज में? हाँ तो तुमको जब जल्दी रहता है तो तुम क्या करते हो? बीच बीच में एक एक गैप दे देते हो ना? हाँ एक साथ दो सीढ़ी चढ़ जाते हो ना? हाँ So this is nothing but a jam. अरे नॉर्मल जा रहे हो तो मतलब जाम का मतलब क्या? तो जाम भी नहीं है। अरे वो होगा भी तो दाब इधर 0 आ जाएगा। समझ में आया? यस तब इधर आएगा 0 ये इसका एक्सप्लेनेशन है, घर में देख लेना। एक प्रोग्राम चलो देखते हैं आज। तुम लोग बोल रहे थे प्रोग्राम सर कैसे होता है? एक प्रोग्राम पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद बोलो क्या समझ में आया। उसमें सर 10 को नंबर को ट्रांसफर करना है, एक्सटर्नल मतलब जो रैम है ना उसमें ट्रांसफर करना है, और इंटरनल जो रैम है उसका मेमोरी लोकेशन 30H से स्टार्ट होना चाहिए, और उसमें स्टोर होगा मतलब एक्सटर्नल जो रैम है उसमें 8050 में स्टोर होगा एड्रेस में। मतलब उससे स्टोर होगा। डाटा सर बाहर वाला रैम से आ रहा है, और जिसका लोकेशन 8050 है। यही ना सर? 30 में आएगा सर, 30 में। हाँ सर, हाँ सर, मतलब बाहर से 8050 से 30 में आएगा। यस सर। 8050 से 30 में आएगा। कोई भी प्रोग्राम करने से पहले ना एक प्रोग्राम का प्लान बनाना पड़ता है। कोई भी प्रोग्राम करने से पहले एक प्लान बनाना पड़ता है, तुम कैसे प्रोग्राम करोगे, राइट? यस सर। प्रोग्राम लेकर पहले सोचना। anyone have any kind of queries regarding the program? हम एक बार समझा देते हैं। 10 नंबर कॉपी करना है फ्रॉम 8050 टू 30। मतलब 8050 में जो कंटेंट रहेगा उसको 30 में लाना है, 8051 में जो कंटेंट रहेगा उसको 31 में लाना है, 8052 में जो रहेगा वो 32 में लाना है, 8053 में जो है उसको 33 में लाना है, as so on and so forth up to 8059. Anyone have any kind of queries regarding the questions? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं सर, मतलब करेंगे कैसे सर इसमें? करेंगे तो बाद में, वो तो हम आ रहे हैं। क्वेश्चंस जो मैंने समझाया इसमें कोई समझने में कोई डाउट है तो बताओ। नो सर नहीं है। ये है 8050 इज द एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशंस, ये है इंटरनल मेमोरी लोकेशन, इंटरनल रैम लोकेशंस। ओके, नेक्स्ट देखो
अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए हम बोल रहे हैं। 8050 में कोई भी एक डेटा है, हमारा कॉपी में देखो, राइट। 8050 में एक डेटा है, कुछ भी डेटा है, इसको तुमको लेकर आना है 30 में। ओके, इस डेटा को मैंने पहले एक्यूमुलेटर में लेकर आएंगे, एक्यूमुलेटर से इधर लेकर जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ये पॉइंट करने के लिए एक ही रजिस्टर्स है, बोलो तो उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए एक ही रजिस्टर्स है, एक ही 16 बिट का रजिस्टर्स है जो एक्सटर्नल मेमोरी को पॉइंट कर सकते हैं। उसका नाम क्या है? सर DPTR। डेटा वाओ, पॉइंटर, फैंटास्टिक, इट्स अ डीपीटीआर। डेटा पॉइंटर। सो इसके अंदर हम डीपीटीआर के अंदर हम 8050 स्टोर करेंगे, राइट? यस 30 मेमोरी लोकेशंस को एक्यूमुलेटर से लाने के लिए ये 30 भी कर सकते हैं, मतलब 30H ये भी कर सकते हैं, मगर हम लोग वो करेंगे नहीं क्योंकि लूप है ना, 10 नंबर प्रोग्राम करना है तो हमको बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, हम लूप चलाएंगे। सो दैट्स व्हाई टू पॉइंट 30H we can use R0 or R1, we can use R0 or R1, दो ही रजिस्टर्स है, because at the date of support only 2 register, either R0 or R1. It's a clear or not? यस सर। R0 support only 2 register, one is a R0, another is R1. So मान के चलो हम लोग R1 ले लिया, तो R1 के हम लोग क्या स्टोर करेंगे? 30। यस सर। ठीक है। R5 बोल के एक रजिस्टर लेंगे जिसके अंदर हम लोग 0A स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे? 0A। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास 10 नंबर है, 10 मतलब कितना होता है? 0A मतलब A तक जाएगा। 0A ले लिया। अभी क्या करेंगे? R5 के जगह में क्या ले सकते थे? R0, R2, R3, R4, R5, R6, R7 सब ले सकते हैं, सिर्फ इधर R1 लिया है इसलिए R1 नहीं ले सकते, बाकी यस कोई सर। भी रजिस्टर तुम ले सकते थे। यस सर। प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम हम लिख देंगे वही प्रोग्राम, ऐसा कोई बात नहीं, हजारों टाइप का प्रोग्राम हो सकता है, तुम्हारा मर्जी से लिख सकते हो। प्रोग्राम कभी हम बोल रहे हैं वही प्रोग्राम होगा ऐसा कोई बात नहीं, प्रोग्राम चेंज करके भी लिख सकते हो, जस्ट हम तुमको वे आउट बता रहा हूं, राइट? तो R5 इज नथिंग बट 0AH। तो पहले हम तीनों में स्टोर कर लेते हैं, डीपीटीआर में 8050, R5 में 0A एंड R1 में 30, राइट? कैसे स्टोर करेंगे? मूव देकर, बोलो कैसे करेंगे? मूव करेंगे। हाँ, मूव इंस्ट्रक्शन बताओ। हाँ सर, मतलब मूव A, ए कॉमा कैसे? एक इधर से आ गया, हमको अच्छा, डीपीटीआर के ये अंदर 8050 करना है, R1 के अंदर 30 करना है, R5 के अंदर 05 करना है। तो मूव DPTR 8050। छागल मतलब बकरी। एनीवन एल्स? अच्छा, दोनों एक ही हो गया सर। दोनों एक ही नहीं हुआ। एनीवन एल्स? अरे बोलो ना, गलती होगा क्या होगा? एक बार छागल बोलेगा सर क्या होगा? सर DPTR वाला याद नहीं आ रहा है। DPTR कमा हैश 8050। ओ अच्छा। मूव डीपीटीआर कमा हैश 8050, हैश छोड़ के नहीं होता है जी, हैश मतलब उसके अंदर स्टोर होगा। तो R1 के अंदर 30 कैसे स्टोर करेंगे? R1 के अंदर 30 सर, तो मूव R1 30 हैश 30H हैश 30H। हैश 30H। यस मूव सर। R5 हैश 0H
चलो हम Yes. लोग स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या किया है। मिल गया? यस सर। देखो प्रोग्राम करने से पहले ऐसा सोचना पड़ता है। हम यस सर। प्रोग्राम करने से पहले ऐसे सोचा है। R1 के जगह में R0 भी लिख सकते थे, R5 के जगह में कोई भी रजिस्टर लिख सकते हैं सिवा जो R1 लिखा है उसको छोड़ के। ये R1 R1 को के छोड़ के जगह कोई भी लिख सकते थे। R1 के जगह R0 भी लिख सकते हैं और R1 भी लिख सकते हैं। हाँ, ओके सर। और ये R5 के जगह में R0 से R7 कोई भी रजिस्टर लिख सकते हो जिसको इधर यूज हो रहा है उसको छोड़ के। यस सर। समझ में आया? यस सर। अभी बोलो 8050 का कंटेंट एक्यूमुलेटर में कैसे आएगा? अभी डेटा बोलो पॉइंटर 8050 का कंटेंट कैसे सर। आएगा एक्यूमुलेटर में? डेटा पॉइंटर से लाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर में सर। कैसे लेकर आएगा? मूव a, dptr @dptr। हुआ है 90% करेक्ट, नॉट 100%। एनीवन एल्स? सर ये कौन सा मेमोरी लोकेशन है, इंटरनल ना एक्सटर्नल? डेटा पॉइंटर तो एक्सटर्नल। External है sir. एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए मूव होता है, मूव x होगा सर। मूव Move. एक्स, x मूव लगेगा एक्स, मूव यस सर। एक्स ए कॉमा @dptr, यस सर, गलती थोड़ा कर दिए, मिस्टेक। मूव एक्स ए कॉमा @dptr। चलो देखते हैं। यस सर। मूव एक्स ए कॉमा @dptr, राइट? यस सर। सर नेक्स्ट बोलो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कैसे 30H मेमोरी लोकेशंस में लेकर जाना है यूजिंग R1। एक एक्यूमुलेटर बार का फिर कंटेंट कैसे 30H मेमोरी लोकेशन में लेकर जाना है यूजिंग R1। तो 30। बोलो कोई, अरे क्या प्रॉब्लम होगा बोलो ना। हाँ सर, एक बार जल्दी फिर से सर, मतलब मूव Move. सर क्या बोल रहे थे? Accumulator एक बार फिर से. एक्यूमुलेटर का कंटेंट R1 30H मेमोरी लोकेशन में लेकर जाना पड़ेगा यूजिंग R1। मतलब हम 30H लिख नहीं सकते डायरेक्टली, नहीं तो हम लिख सकते थे मूव 30H, A। So move @R1 और कॉमा ए, नहीं, move A, @R1 कॉमा ए। 30. Yes sir. मूव @R1, A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थैंक यू टू ऑल। यस देखो सर। ऐसा ही लिखा है मैंने। भाया करके जा रहा है ना सर। भाया करके क्यों जा रहा है अभी समझ में आएगा। बोलो इसके बाद हमारा कौन सा मेमोरी लोकेशन का कंटेंट कॉपी करना है? सर उसका नेक्स्ट वाला इंक्रीमेंट करना है. नेक्स्ट वाला मेमोरी लोकेशन का कंटेंट करना है। तो नेक्स्ट वाला किधर है? 805 8051। डेटा पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे. গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ কি কি বিল ছিল? হ্যাঁ কত টাকার বিল ছিল সেটা বলবে? না ওটা প্রিন্সিপালের নামে হবে, আমি লিখে দিয়েছি তো পাশে এক্সেলের পাশে। হ্যাঁ প্রিন্সিপালের কাছে দেওয়া আছে, দেখো ওখানে লেখা আছে। হ্যাঁ ওটা ওটা ব্যাংক ব্যাংক ডিটেইলস। আচ্ছা আমার তো অরিজিনাল বিল আসবে। আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখছি, দুটো দুটো বিলই কেটে গেছে, দুটোতে একই জায়গা থেকে এসেছে। দেখো দুটো
बोलो क्या करना पड़ेगा? ये मेमोरी लोकेशन को बनाना पड़ेगा, डीपीटीआर को भी बनाना पड़ेगा, R1 को भी बनाना पड़ेगा। Yes, sir. तो डीपीटीआर करना पड़ेगा 8051 एंड R1 को करना पड़ेगा 31। सो INC DPTR, INC R1, राइट? Yes, sir. INC DPTR, INC R1। अभी बोलो क्या करना है? एक ही काम करना है। एक बार ऑपरेशन हो चुका है हमारा। यस सर। हमको कितना बार ऑपरेशन करना है? 10 बार। किधर है? किधर है वो R5 में है सर, मतलब तो R5 का कंटेंट should be decremented by 1 and checking whether R5 is 0 or not. Yes, If sir. R5 is not equals to 0, then jump again this line. Again this line will be repeated. So instructions क्या होगा? DJNZ, DJNZ R5, DJNZ R5 back, DJNZ R5 back means नहीं, decrement the content of R5 by 1 and checking the R5 is 0 or not. If not equals to 0, then jump to the over here. So over here मतलब अभी DPTR में क्या है सर? 8050. Yeah, no, 8051. 8051. So अभी 8051 का कंटेंट आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। सर नेक्स्ट एक्यूमुलेटर कंटेंट will be coming into the at the rate of R1 मतलब 31 में, because R1 में अभी 31 था। फिर DPTR को एक बढ़ाएगा मतलब 8052 करेगा, R1 को एक बढ़ाएगा मतलब 8032 करेगा। अगेन R5 को एक घटाएगा, 09 से 08 होगा। प्रोसीड्यूर गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन 10 बार। 10 बार होने के बाद लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम ऑलवेज हियर इज जंप हियर, बिकॉज एक इनफाइनाइट लूप, हियर इज जंप हियर। ये लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जस्ट लाइक ए हॉल्ट ऑफ 8051। एक बार फिर से सर वहां से मतलब जो किए ना, यहाँ से सेकंड वाला स्टेप नहीं समझे सर, मतलब एक बार फिर से मतलब जो किए हैं, जैसे इंक्रीमेंट करने के बाद मतलब स्टेप बाय कैसे स्टेप होगा? ही समझना पड़ेगा। देखो ये क्या किया, 8050 का कंटेंट आ गया एक्यूमुलेटर में। हाँ क्या नहीं यस बोलो, सर। ठीक है। हाँ सर, एक्यूमुलेटर में अभी एक्यूमुलेटर का कंटेंट मतलब 8050 का कंटेंट चला गया 30 में। हाँ है तो बोलो, ना है तो बोलो। यस सर। ना सर, नहीं। क्यों? एक्यूमुलेटर R1 में क्या था? R1 में 30 था सर। तो एक्यूमुलेटर कंटेंट 38 मेमोरी लोकेशन में नहीं जाएगा एट द रेट ऑफ यूज कर रहे। इसीलिए तो मैं शुरुआत दिन एकदम 4 इंस्ट्रक्शन बढ़िया से पढ़ाया था। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, जो एक्यूमुलेटर का मतलब एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसमें 30H में चला जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में क्या है? 8050 का कंटेंट नहीं है, तो अभी 80 का 50 का कंटेंट 30 में गया कि नहीं इन दोनों इंस्ट्रक्शन के बाद? यस सर, यस सर, एकदम एकदम। अभी हमको कौन सा मेमोरी लोकेशन पे जाना है? 8051 का कंटेंट 31 में लेकर जाना है, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। Yes. और इन दोनों स्टेप बार बार करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया। यस सर। मतलब DPTR को बना दिया 805 1 R1 को किया यस सर, 31 एग्जैक्टली। यस सर। सो अभी तो एक बार ऑपरेशन हो गया, तो R5 पे एक डिक्रीमेंट करेंगे, चेक करेंगे R5 0 है कि नहीं। R5 0 हो गया तो हमारा प्रोग्राम खत्म। 0 नहीं हुआ तो दोबारा रन कराएंगे। मतलब घटते घटते जाएगा सर, मतलब घटते जाएगा। 09 मतलब 9 अभी हो जाएगा। 09 हो जाएगा। यस सर। अभी 09 होगा। ये 0 है? यस सर। 0 नहीं है। नहीं, 0 अभी नहीं है सर, मतलब अभी 0 नहीं है तो जाम करेगा इधर।
बैक में जाएगा, फिर वापस वहाँ जाएगा। ये सर, फिर अभी क्या करेगा, इस लाइन में क्या करेगा अभी? फिर इंक्रीमेंट होगा, 5 2 हो जाएगा। स्टार्ट। ये लाइन में क्या करेगा, सिर्फ ये लाइन में बताओ। और उसमें उसमें सर डेटा पॉइंटर का जो था 5 1 में था, वो वाला उसमें चला जाएगा। 8051 मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एक्यूमुलेटर में आएगा। यस सर, यस सर। एक्यूमुलेटर का कंटेंट 31 मेमोरी लोकेशंस में जाएगा। दोनों हाँ सर, इंस्ट्रक्शंस का काम हो गया। 8051 का मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट 31 मेमोरी लोकेशंस में चला गया। यस सर। तो अभी हमको जाना है 8052 में एंड 32 में। मैं चला यस गया INC DPTR एंड INC R1 करके, यस सर। राइट। हम्म, DJNZ R5 किया, क्या होगा? 09 से 08 हो जाएगा। 08 हो जाएगा। फिर इधर से जंप करके इधर, फिर अभी 8052 का कंटेंट आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर कंटेंट चला जाएगा 32 में। इन दोनों इंस्ट्रक्शन से हो जाएगा 8052 का कंटेंट 32 में चला जाएगा। फिर ये बढ़ जाएगा 8053 एंड INC R1 मतलब और वो उसमें भी 33। 33, हाँ 33 हो जाएगा। ये प्रोग्राम खत्म एंड हियर इज जंप हियर। यस सर, यस सर। ऐसे करके देखो, मैंने एक प्रोग्राम समझा दिया, तुम लोग को जो प्रोग्राम दिया उसको करो। सर हाँ बोलो। हेलो सर, बोलो। हियर जंप, एस जंप हियर का मतलब नहीं समझ में आया। ए इनफाइनाइट लूप, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और चाल डाल एक साथ कर दो और अलग करते जाओ, कुछ नहीं। सर तो एक कसम 10 ही कुछ नहीं। नंबर को करना है ना, तो 10 नंबर को तो कर लिए ना। 10 नंबर हो गया, इसलिए तो प्रोग्राम खत्म हो गया इधर ही। अभी इसका मतलब क्या, इसको एक काम देते रहो माइक्रो कंट्रोलर को, वो करते रहेगा। हियर इज जंप, हियर इज जंप, हियर लाइक जस्ट लाइक अ हॉल्ट ऑफ 8085 8085 8085 में प्रोग्राम किए हो तो लास्ट लाइन में हम लोग हॉल्ट लिखते थे। यस यस सर। सर, यस तो हॉल्ट के बदले में ये है हियर इज जंप, हियर। ओके सर। मतलब इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है ना सर? हाँ इनफाइनाइट। हर हाँ सर, हर प्रोग्राम के लास्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ हर प्रोग्राम के लास्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ सर, ये इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है। हेयर हाँ हेयर जंप इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा मतलब ये हैंग कर रहा है सर। है। हैंग हाँ नहीं जैसे करेगा। बोले थे ना, आप बोले थे हैंग ना अलग सर, चीज हैंग है। करना मतलब। इसको जानबूझ के हम हैंग करवाया, इसको जानबूझ के हम इनफाइनाइट लूप में घुसा दिया। कहने का मतलब सर, हैंग करना मतलब आप बताए थे ना कि हैंग इनफाइनाइट करना लूप। मतलब वही होता है, मगर इसको जानबूझ के किया, इसके कुछ काम दिया, ये काम करते रहो बेटा। ठीक है सर। चलो बहुत दिन बाद मिलेंगे तुम लोगों के साथ, मंडे फिर। एनीथिंग एल्स? कह रहे हैं सर, यही वाला सब्जेक्ट मतलब फिर से पढ़ाने वाले हैं कहीं और सर, मतलब 4:30 बजे से। समझ में नहीं आया। जैसे सेम सब्जेक्ट मतलब कहीं और, मतलब अभी है सर ना आपस ना में। ना ना ना, ये एकदम अलग है। ये रामगढ़ एक ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो क्या वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसको कर देना और सर एम्बेडेड सिस्टम पर ही है सर? है। ना ना ना, एम्बेडेड एम्बेडेड सिस्टम। सिस्टम नहीं, वो प्लेसमेंट कैसे होगा नहीं होगा इसको लेकर। अच्छा सर, कल भी इतने बजे से होगा ना सर? कल होगा, कल तो सैटरडे है ना, फिर संडे अच्छा, मंडे से शुरू होगा, यस सर, यस फिर मंडे से 3 बजे। ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू नो? बोलो। एनीथिंग यू वांट टू नो? नहीं सर। ओके, Yes, sir. चलो एंड ऑफ टुडेस प्रोग्राम।